اچھے فائرر کے بنیادی اصولوں کے بارے میں آج بات کریں گے کہ ایک اچھا فائرر جو ہوتا ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہوتے ہیں، وہ کن اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے کہ اس کا فائر اچھا لگتا ہے۔ جبکہ اگر کسی کا فائر بہترین اور اچھا نہ ہو تو وہ بھی سن لے گا، وہ بھی ان چیزوں پر عمل کر لے گا اور وہ ایک بہترین فائرر بن جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ پیپر کی حد تک بھی آپ نے اس ویڈیو کے دیکھنا ہے کہ اگر کبھی پیپر میں عموماً یہ سوال آتا ہے کہ اچھے فائر کے بنیادی اصول لکھیں، تو آپ اگر اچھے فائر کے بنیادی اصول لکھیں تو آپ بے شک 6 بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر 5 بھی لکھ لیں تو آپ تب بھی اس میں 10 نمبر لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اچھے فائر کے بنیادی اصول میں ہے درست پوزیشن۔ یہ میں نے ایک ترتیب دی ہوئی ہے، اس ترتیب کی مناسبت سے آپ نے تمام تر عمل پیرا ہونا اس پر۔ سب سے پہلے درست پوزیشن ہے۔ پوزیشن تو آپ بنا لیتے، آپ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹینڈنگ میں، نیلنگ میں بیٹھ جاتے ہیں، سٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں، یا پراؤن پوزیشن یعنی کہ آپ لیٹ جاتے ہیں۔ پوزیشن تو آپ بنا لیتے ہیں، لیکن آپ کی درست پوزیشن نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے درست پوزیشن بنانی ہے۔ چونکہ ویڈیو میں جو ہوں ہتھیار وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا ہوں، تو اس لیے آپ نے درست پوزیشن، آپ نے ویڈیوز وغیرہ ملاحظہ فرمائی ہوگی، اور اساتذہ کرام ہمیشہ کے لیے آپ کو درست پوزیشن کے طریقہ کار اور یہ بتاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ درست پوزیشن بنانی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے مضبوط پکڑ۔ مضبوط پکڑ کس طرح؟ ہتھیار کو آپ نے اس طرح پکڑنا ہے کہ اتنا آپ نے ہتھیار کو جو ہے وہ ڈھیلا بھی نہیں پکڑنا۔ آپ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا وغیرہ پر یا آئے روز آپ ویڈیوز ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جوان ہتھیار کو، اسلحہ کو اتنا ڈھیلا پکڑا ہوتا ہے کہ وہ جب فائر کرتا ہے تو اسی کا ہتھیار اس کے یا تو چہرے پر لگتا ہے، اس کے جسم پر لگتا ہے، یا اس سے دیگر حضرات جو ہیں وہ اس سے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا جو سب سے جو اس نے جو میجر غلطی کی ہوتی ہے، تو اس نے ہتھیار کو جو ہے وہ مضبوط طور پر پکڑا نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ نے ہتھیار کو اس طرح پکڑنا ہے کہ نہ اتنا ڈھیلا ہو اور نہ اتنا جو ہے وہ آپ نے سخت پکڑا ہوا ہے کہ آپ کا جو وجود ہے وہ تھک گیا یا آپ کا جسم جو ہے وہ تھرتھراہٹ پر شروع ہوا ہے۔ تو آپ نے ہتھیار کو نہ اتنا مضبوط پکڑنا ہے اور نہ اتنا ڈھیلا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ احتیاطی تدابیر میں بھی آتا ہے کہ آپ ہتھیار کو اتنا ڈھیلا نہ پکڑیں اور نہ اتنا مضبوط۔ جبکہ ایک اچھے فائر کی بنیادی اصول میں بھی ہے کہ آپ نے ہتھیار کو کس طرح پکڑنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے درست شست۔ اگر آپ کو درست شست کے بارے میں پتہ ہے تو آپ ایک اچھے فائرر ہیں۔ اگر آپ کو درست شست کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ اگر بیک سائڈ فرنٹ سے ٹپ کو آپس میں نہیں ملا پا رہے ہو، آپ جو ہے وہاں پر جہاں پر ٹارگٹ پر جو چیندی ہے آپ اس میں جو بیک سائڈ فرنٹ سے ٹپ کو آپس میں ملا کر وہاں پر اگر آپ بہترین طریقے سے آپ ایم نہیں کر سکتے ہو، آپ نے بیک سائڈ فرنٹ سے ٹپ، آپ کی ٹپ اوپر اٹھی ہوئی ہے یا بیک سائڈ کی جو نیچے ہے دائیں یا بائیں، تب بھی آپ جو ہے آپ کا فائر جو ہے وہ بہتر نہیں لگے گا۔ اگر آپ نے ٹپ نیچے لیے تو آپ کے تمام فائر نیچے لگیں گے، اوپر لیے تو تمام فائر آپ کے اوپر لگیں گے، اس طرح اگر دائیں لیے تو دائیں لگیں گے، بائیں لیے تو بائیں لگیں گے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ کہ آپ نے درست شست پر بھی آپ نے توجہ دینی ہے کہ جب آپ کو اساتذہ کرام پر بتا دے کہ درست شست تو درست شست پر بھی آپ نے جو ہے وہ مکمل طور پر توجہ دینی اور بیک سائڈ فرنٹ سے ٹپ کو آپس میں ملانا ہے، اور یوں ملانا ہے کہ یہ آپ کو بالکل ایک ہی طریقے سے آپ کو بیک سائڈ فرنٹ سے ٹپ دکھائی دیں۔ اور یاد رکھیں ہم نے بھی جو ہے سنا تھا اور آپ نے بھی سنا ہے کہ باریک شست اور موٹی شست، بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، مکمل آپ نے اس کو یہاں پر درمیان میں لینا۔ یہ فرنٹ سے ٹپ نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، نہ اوپر ہو یا نہ نیچے ہو، یہ بالکل برابر ہو، ان کے سرے بھی برابر ہو اور مکمل۔ اگر کسی کو یہ جو بتا رہا ہوں اگر کوئی مزید جاننا چاہتا ہے تو مجھے واٹس اپ کر سکتا ہے 0342863161 تاکہ میں درست شست کے بارے میں اس کو میں پکچر سینڈ کر سکوں اور اس کا جو دماغ ہے
इस पर मुकम्मल तौर पर मजीद खुल जाए। इसके बाद चौथे नंबर पर है सांस पर कंट्रोल। एक अच्छे फायर को तो सांस पर कंट्रोल उसको होता है, उसको पता होता है कि सांस किस तरह ली जाए, लेकिन नए नए फायर हो उसके लिए ये चीज इंतहाई लाजिम है। वो कभी कभार क्या करता है, फायर के दौरान बहुत ज्यादा सांस जिस्म के अंदर ले लेता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ले लेता है, तो उसकी वजह से उसकी जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है और उस पर एक बबलिंग नमूना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फायर है वो तो या टारगेट पर लगता नहीं है, अगर टारगेट पर लगता है तो वो एक खुले हुए जो है उसके बुलेट वहां पर जो है नजर आते हैं। तो सांस पर कंट्रोल भी एक बेहतरीन चीज है। आप जब फायर करें तो आप सांस जो है वो सांस आप जिस्म में नॉर्मल लें। अव्वल तो मैं जब भी मैं खुद फायर करता हूँ मैं सांस बिल्कुल जिस्म के अंदर लेता नहीं हूँ, बस इस तरह कर लेता हूँ कि दांतों को बंद कर लेता हूँ और मुंह को बंद कर लेता हूं और नाक के जरिए आहिस्ता से सांस ऑक्सीजन लेता हूं और कार्बन डाइऑक्साइड नाक के जरिए जो मैं हूं उसको मैं क्या करता हूं, खारिज करता हूं। अभी मैं एक बार प्रैक्टिस भी करता हूं, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन मैं ऐसे आप जब फायर करेंगे और आप जब मुंह को बंद करेंगे ये प्रैक्टिस के बाद ही होगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे नाक से सांस लेंगे और नाक के जरिए जब आप खारिज करेंगे तो आप जो एक जवान जो 5 फायर कर रहा था सांस बंद करके तो आप उसके बजाय 15-20 फायर कर लोगे और इससे आप बेहतर नतीजा हासिल करोगे। तो खुलासे कलाम ये कि चौथे नंबर पर है सांस पर कंट्रोल और 5वें नंबर पर है ट्रैगर कंट्रोल। ट्रैगर कंट्रोल इस तरह कि जब आप फायर करें तो आपका ये जो शहादत वाली जो उंगली अगर आप राइट हैंड रहे तो आपका ये जो बंद है सिर्फ इसी को पता चलना चाहिए कि आप फायर कर रहे हैं, ना कि आप मुकम्मल हाथ को इस्तेमाल करें। तो ट्रैगर कंट्रोल जो है तो आपका एक बेहतरीन ट्रैगर कंट्रोल हो कि आपके जिस्म को भी पता ना चले और आप इस तरह ट्रैगर कंट्रोल करें, यानी कि आप फायर करें ट्रैगर प्रेस करें कि बुलेट निकल भी जाए लेकिन आपको पता तक भी ना चले। ज्यादातर जवान जो है वो ज्यादा उंगली घुसेड़ देते हैं ट्रैगर गार्ड में और वो जो ट्रैगर को प्रेस करते तो उससे मुकम्मल हथियार और मुकम्मल जिस्म पर जो है वो हरकत पड़ती है और इस पर फायर पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो ये अच्छे फायर के बुनियादी उसूल: दुरुस्त पोजीशन, मजबूत पकड़, सबसे पहले वो खड़ा होता है, दूसरे नंबर पर वो हथियार को पकड़ता है कि हथियार पोजीशन मारने के बाद हथियार को पकड़ना, तीसरे नंबर पर वो शिस्त लेता है, चौथे नंबर पर वो सांस पर कंट्रोल रखता है और मैंने जो आपको टिप्स बताई यही बेहतरीन है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के बाद आप नतीजे पर पहुंचेंगे कि नाचीज शख्स ने आया क्या दुरुस्त कहा है यानी क्या, बल्कि मेरा ये तजर्बा है। और लास्ट पर आप ट्रैगर प्रेस करते हैं। इसी तरतीब के साथ जब आप याद करेंगे तो डेली रूटीन में भी आपसे गलती नहीं होगी, जबकि आप पेपर में भी बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। छठे नंबर पर फॉलो थ्रू है और ये इंतहाई अहमियत के हामिल है। ये जो छठे नंबर पर है ये किस तरह होता है, आपने एक बॉलर को देखा होगा वो जब बॉल फेंकते है तो वो तो गेंद यहां से कर लेता है लेकिन हाथ उसकी यहां मुकम्मल आते हैं। अगर एक आदमी फुटबॉल खेलते है तो वो किक लगाता है, किक वो लगा लेता है लेकिन पांव उसका मुकम्मल फिर भी उठता है। तो फॉलो थ्रू इस तरह है, जवान जब फायर करता है, एक अच्छा फायर जो फायर होता है उसको तो पता होता है, लेकिन जो नए नए जवान होते हैं वो जब फायर करता है जो ही वो फायर करता है तो ट्रैगर को वो छोड़ देता है, उंगली को बाहर निकाल लेता है, सर को ऊपर उठा लेता है और टारगेट की तरफ देखता है, कभी सर को दाएं करता है कभी बाएं करता है, जिस्म को ऊपर उठा लेता है वगैरह वगैरह। तो वो फॉलो थ्रू बरकरार नहीं रखता। ये इस तरह होता है कि आप बिल्कुल आप बैक या टिप फ्रंट या टिप और टारगेट पर आपने मुकम्मल फोकस रखा हुआ है, आप टारगेट की तरफ देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल आप नॉर्मल हो, आपने फायर किया, बिल्कुल आपका जो जिस्म है, आपका जिस्म, आपकी सांस, आपकी हरकत, आपका आंखों का बैक साइड फ्रंट से टिप की तरफ देखना, आपकी बाएं वाली आंख अगर आप है उसका मुकम्मल तौर पर बंद होना, बिल्कुल किसी के साथ बात ना करना, किसी को तवज्जो ना देना, मुकम्मल फोकस वहीं पर रखना, इसको दरअसल फॉलो थ्रू कहते हैं। आपने ये तीरंदाज वगैरह देखे होंगे या इस तरह जो है वो कंपटीशन वगैरह वालों को देखे होंगे, वो जब फायर करती है जो वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मुकम्मल तौर पर तवज्जो जो है वो टारगेट पर रखते हैं। जिस तरह पहला फायर आप टारगेट पर करते हैं और मुकम्मल जो है नजर वगैरह और मुकम्मल जो है अपनी तमाम तर तवज्जो टारगेट पर मरकूज रखते हैं,
इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा फायर भी वहां पर महफूज रखें और अपने फॉलो थ्रो को बरकरार ही रखें। ये थे अच्छे फायरर के बुनियादी उसूल। अभी हम आते हैं कि एक फायरर कौन सी गलतियां करता है कि जिसकी वजह से उसका फायर या तो टारगेट पर लगता नहीं, अगर लगता है तो एक बुलेट कहीं पर होता है और एक बुलेट कहीं पर होता है। ये दरअसल पेपर में नहीं आती ये सवाल, लेकिन ये दरअसल गलतियां होती हैं जिनकी वजह से वो इन चीजों पर तो वो अमल पैरा हो जाता है, लेकिन ये चीजें जो है उसके जहन में नहीं होते। तो ये दरअसल फ्लिंचिंग है। ये जो इंग्लिश का लफ्ज लिखा हुआ है, फायर की आवाज, धमाके, यानी कि फायर की एक आवाज होता है, एक धमाका होता है और एक रिकॉइल होता है। जवान इन चीजों को मद्देनजर रखता है कि क्योंकि फायर जो है वो किसी को भी खुश नहीं होता है कि फायर हो, किसी के कंसेप्ट में ये नहीं होता कि फायर हो जाए या फायर हो, लेकिन फोर्सेस में जो है मौजूदा वक्त की मुनासबत और इसके साथ फायर करना जो है वो लाजिम है। तो इन फायर की आवाज, धमाके या रिकॉइल की मुतवक्के असर से फायर होने से पहले या फायर के लम्हे में गैर इरादी तौर पर जिस्म को हरकत देना, ये जो तमाम तर बातें हैं, यानी कि आवाज, धमाके, रिकॉइल, इन तमाम को दरअसल फ्लिंचिंग कहा जाता है। इसकी चंद अलामतें, यानी कि फायर की आवाज को मद्देनजर रखता है फायरर, या धमाके को मद्देनजर रखता है, या उसके जहन में होता है कि यार मैं तो अभी जो फायर करूंगा वो असातिज़ा किराम से पूछता है कि इसका कितना झटका है, या कि यार मुझसे ऊपर तो नहीं उड़ेगा, या नीचे तो नहीं गिरेगा, या आगे की तरफ नहीं जाएगा, या मुझे तो साथ में पीछे नहीं लेके जाएगा, या ये फायर तो मुझे नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह। तो इन चीजों को वो मद्देनजर रखते जब वो फायर करता है तो वो सबसे पहले आंखें बंद करता है। जब वो पल्किंग करता है, जब वो आंखों को बंद करता है तो उसका टारगेट पर फायर नहीं होता। दूसरे नंबर पर वो कौन सी गलती करता है, सर या चेहरा जो है वो पीछे लाता है। जो ही वो फायर करता है तो धमाके, आवाज और रिकॉइल को मद्देनजर रखते वो सर या चेहरे को पीछे लाता है। इस तरह कंधे या जिस्म को वो पीछे लाता है, इस तरह हाथ या बाजू पीछे करना, इसी तरह जो है हथियार को नीचे या एक तरफ झटका देना, ट्रैगर पर अचानक झटका देना, या फायर से पहले जिस्म में तनाव, जिस्म में एक किस्म की जो है वो एक किस्म का वो जो है वो सख्त कर लेता है धमाके और आवाज और इनको मद्देनजर रखते हुए। तो खुलासा कलाम ये है कि जितनी भी मैंने बातें की हैं, एक अच्छा फायरर और प्लस इंस्ट्रक्टर हजरात इन तमाम बातों से वाकिफ हैं, और एक बेहतरीन इंस्ट्रक्टर जहां पर जवानों को ये 6 बातें बताता है, वहां पर एक इंस्ट्रक्टर जवानों को ये बातें भी बताता है। और मैंने भी अपने असातिज़ा किराम से रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो, रब उनको मीठा मीठा मक्का और मदीना दिखाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो उनसे मैंने ये बातें भी सुनी है कि आपने फायर के धमाके, आवाज और रिकॉइल को मद्देनजर रखते हुए आपने आंखें नहीं बंद करनी, ना कि आपने सर या चेहरे को पीछे लाना है या आगे लेकर जाना है या हाथ को आपने झरक देनी है, वगैरह वगैरह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे आपसे एक आजाना सवाल है, आप मेरी जो भी वीडियो देखें तो आप उसको लाइक्स, कमेंट्स और उसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी की वजह से जो है मुझे हौसला अफजाई मिलती है और वीडियो जो है यूट्यूब पर ज्यादा वायरल होती है। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत के साथ होंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो रही होती है तो आप मेरी इस्लाह करें, क्योंकि पूरी और मुकम्मल जो है वो रब की जात है। मैं ना चीज और इंतहाई ना होने के बराबर इल्म रखता हूँ, और ये जो इल्म है ये रब्बुल आलमीन की अता है, और आप तमाम हजरात की और नाजरीन की दुआएं, रब्बुल आलमीन आपसे राजी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।